Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 6, your subject is science and lecture number 59. Unit number 8, our topic is rusting. Rusting से क्या मुराद है? जंग लगना, किसी चीज़ का ख़राब हो जाना. For example, you can see on your screen. ये क्या है? ये rusting है. Rusting का process कैसे होता है? So, when a clean, shiny iron nail is left in a damp place, it becomes covered with a reddish brown substance called rust. ठीक है, रस्ट किसको कहते हैं? जंग. जब हम किसी भी आयरन नेल को या लोहे की कोई चीज़ है उसको हम कहाँ रख देते हैं? मॉइस्ट प्लेस पर, डैम्प प्लेस पर, नमी वाली जगह पर, तो क्या होता है उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाता है. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेडिश ब्राउन चेन एंड अ प्योर वाइट आयरन चेन. तो इनके अंदर क्या है? फ़र्क आ गया है. क्यों? क्योंकि वो जो था प्योर आयरन की फॉर्म में हमारे पास अगर एक चेन है या जो भी है नेल है, जिस तरह की कोई भी चीज़ हो, तो जब हम उसको रखेंगे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नमी का तनासुब ज़्यादा होगा या वहाँ पर जो डैम्प होगी, जगह नम होगी, थोड़ा सा उसमें वाटरी प्लेस में रख देंगे या बारिश पड़ जाए तो उसके ऊपर क्या होता है? रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. एंड यू मस्ट हैव सीन मेटेलिक थिंग्स दैट हैव गॉन रस्टी. Rusting can be considered to be a slow process of burning, and as with the process of burning, air plays an important role in the process of rusting. During rusting, oxygen and water from the air combine with the iron to form hydrated iron oxide, which is rust, and this explains why iron increases its weight when it rusts. For example, if there is oxygen and water and iron, ये तीनों चीज़ें अगर combine कर रही हैं तो फिर क्या होगा? रस्टिंग का प्रोसेस होगा एंड दैट मे फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड. तो इसके नतीजे में क्या होगा? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनेगा, जो कि हमें ये शो करवाएगा कि रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो हो गया या फिर रस्टिंग हो रही है. ये इसमें सारा हमें एक्सप्लेन करेगा. एंड सो देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन प्रिवेंट रस्टिंग. Iron and steel products rust if they are exposed to damp places. This is why iron and steel bridges rust, as well as cars, ships and other things made up of iron and steel. Rust weakens the metal, which eventually collapses and becomes useless. Throughout the world, millions of dollars are wasted each year because of the damage caused by rusting. ये आपको पता है कि दुनिया में हर साल जो है मिलियंस डॉलर्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं. क्यों वेस्ट हो जाते हैं? कि वो जो डैम्प होने की वजह से जगह रस्टिंग होती है, और रस्टिंग से बचने के लिए, कि रस्टिंग को बचाव के लिए इन चीज़ों को दोबारा प्योरीफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. And since we know that iron rust easily when exposed to moisture, so it is important to find the ways to stop it from rusting. There are several ways in which you can do this. For example, by coating the iron with a layer of oil. So in this process, this protects the iron from damp air. However, while the oil is rubbed off, rusting begins. By painting over the iron, paint when dry forms a tough coating over the iron, so protect it from air. And by coating the iron with a thin layer of tin plates made by dipping sheets of iron in molten tin can be made into containers or food and other products. So this can prevent it from the rusting. So this is the overall process, the rusting. So rusting process begins as when we put an iron nail or the iron chain or any iron thing into the damped place. Here are the question answers of this chapter. Is short question number 1. That is, what is atmosphere? Atmosphere क्या है? फिजा किसको कहते हैं? The earth is surrounded by a layer of air which extends to a height of about 200 miles above its surface. This layer is called atmosphere. Atmosphere क्या है? तो जो ज़मीन है उसने घेरा हुआ है सारी हमारी एटमॉस्फेयर को, फिजा को. तो वो जो है हाइट कितनी है? अबाउट 2 माइल्स है, तकरीबन 2 मील वो हाइट है जिसने उसको कवरी में रखा हुआ है. तो ये जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं? दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सो ये जितना भी यानी कि हमारे इर्द गिर्द के जितनी भी कह सकते हैं फिजा है जो कवर्ड है विद एयर, लेयर ऑफ द एयर दैट एक्सटेंड टू अ हाइट ऑफ अबाउट 200 माइल्स अबाउट इट्स सरफेस. सो दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. Question number 2.
विच गैस स्पोर्ट्स बर्निंग एंड विच गैस नॉट स्पोर्ट। इनमें से दो गैसेज हैं जो आपको बता रहे हैं कि कोई ऐसे दो गैसेज बताएं जिनमें से कोई एक जो है बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करे और दूसरी बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट ना करे। द गैस विच सपोर्ट्स बर्निंग और कंबशन, यानी ऐसी गैस जो कि जलने के अमल को तेज करे या फिर उसको बर्निंग को करे या कंबशन को करे, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, वो गैस है हमारे पास ऑक्सीजन। एंड द गैस विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग इज नाइट्रोजन। अगर किसी जगह लो फ्लेम है, हम वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे तो जो फ्लेम होगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जलेगा, लेकिन अगर नाइट्रोजन होगी डेट विल बी कि वो ख़त्म हो जाएगा। Question number 3, what is rusting? As we have read it, when a clean shiny iron nail is left in a damp place, it becomes covered with a reddish brown substance called rusting, and this overall process is called rusting. रस्टिंग का जंग लगने का प्रोसेस अभी मैं सारा आपको एक्सप्लेन करके आई हूँ। वही आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब हम किसी साफ सुथरी आयरन की नेल है या आयरन चेन कह सकते हैं, उसको हम नमी वाली जगह पर रखेंगे तो वो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस आ जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट। और ये जो रस्ट का प्रोसेस होता है जिसके जरिए सारा प्रोसेस जिसमें रस्ट उस आयरन नेल पर या आयरन चेन पर आएगा, तो इस ओवरऑल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।